Hello student, you are most welcome from amazing lecture of this session, the types of gland in case of human. This topic is related to class 11 biology, chapter 22, chemical coordination and integration. And this is my first lecture from this chapter. So here first question is that how can we define a gland? The gland can be defined as it is the group of cells that secrete chemical substance or any hormones, enzyme in the body parts are known as the gland. It means any types of bunch of cells that secrete the chemical in our body are known as gland. If we talk about human body, in case of human body, three types of gland are reported: endocrine gland, exocrine gland, and mixed gland. As the name indicates, endo means inside, crine means secretion. It means the types of gland that secrete their chemical substance inside the body are known as the endocrine gland. While exocrine gland, exo means outside, crine means secretion. It means the types of gland that secrete chemical substance outside our body are known as the exocrine gland. While the mixed gland, mix means mixing of both endo and exo. It means it is the type of gland that secrete their chemical substance inside our body and outside our body surface. So this type of gland are known as the exocrine gland. In the same way, endocrine gland also known as the ductless gland. It means here there are no types of duct are present, while in case of exocrine gland duct are present. It means here a long duct are present. This represent that they are exocrine gland. While the mixed gland are the types of gland that consist of the both type of chemical structure organization, such as ducted and ductless. In the same way, the endocrine glands secrete their chemical substance into the blood stream of our body, while the exocrine glands secrete their chemical substance outside the body surface, while the mixed gland are the types of gland that secrete their chemical substance into the bloodstream and also the outside of our body. If we talk about the types of endocrine gland, it is reported in pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, and adrenal gland. If we talk about exocrine gland are reported such as oil gland, sweat gland, oil milk gland, salivary gland, mixed wax gland, mucus gland, and lacrimal gland. And the mixed gland such as liver, pancreas, ovary, and testes, in which the largest gland are reported in our body are known as liver. Liver itself also considered as a gland and is considered as the largest gland in our body. Its weight approximately about 1.2 to 1.5 kg and the size is about 7 to 10 centimeter. In case of male, the liver are large in size, it is 10 to 10.5 centimeter, while in case of female, it is small in size, 7 to 8 centimeter in length. While the smallest endocrine gland or the smallest gland in our body, smallest gland in human body, also known as the pineal gland. It is about 10 millimeter in size. तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी ग्लैंड के बारे में. तो जैसा पहले मैंने डिफाइन किया कि ग्लैंड क्या होता है. ग्लैंड होता है बंच ऑफ सेल जो कि किसी केमिकल सब्सटेंस को हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेट कर रहा होगा. अब वो केमिकल सब्सटेंस कोई हार्मोन हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है या कोई ग्लैंडुलर पार्ट हो सकता है. तो इस तरह से जो भी बंच ऑफ सेल जो किसी केमिकल सब्सटेंस सीक्रेशन कर रही होगी उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं. अब इसके सीक्रेशन और स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग ग्लैंड को 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड. तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एंडो का मतलब हो गया इनसाइड, यानी कि ऐसी ग्लैंड जो कि अपना केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेट करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. एक्सो क्या होगा? ऐसी ग्लैंड जो कि अपना केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी के बाहर सीक्रेट करती है, मतलब बॉडी सरफेस के बाहर सीक्रेट करती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. और मिक्स्ड ग्लैंड ये क्या होगा? मिक्स्ड ग्लैंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का मिक्सअप होता है, यानी कि ये जो ग्लैंड होती है ये अपना केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर भी सीक्रेट करेगी और बॉडी के बाहर भी सीक्रेट करेगी. सो दिस टाइप ऑफ ग्लैंड आर नोन एज द मिक्स्ड ग्लैंड. अब यहाँ पे जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड अपना केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट कर रही होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर.
जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो अपना केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती है, कहां पे? वो सीक्रेट करती है बॉडी सरफेस के बाहर। जबकि जो हमारी मिक्स ग्लैंड है वो अपना केमिकल सब्सटेंस बॉडी सरफेस के बाहर में सीक्रेट करेगी और ब्लड के अंदर सीक्रेट करेगी। अब ये ऐसा करती क्यों है? क्योंकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो होती है डक्टेड ग्लैंड, मतलब यहाँ पर डक्ट पाई जाती है और डक्ट के प्रेजेंट होने की वजह से ये कैपेबल होती है कि अपने अंदर बने केमिकल को ये डायरेक्टली पास कर सकता है। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं पाई जाती है। तो ये मान लें कोई ग्लैंड है, अब यहाँ पर डक्ट नहीं है, तो जब डक्ट नहीं होगा तो उस कंडीशन में अपने केमिकल सब्सटेंस को बॉडी के बाहर या किसी भी एक एरिया में उसको सीक्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये करते क्या है कि अपने केमिकल सब्सटेंस को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। जब ब्लड में डिसॉल्व कर देगा तो ये केमिकल सब्सटेंस ब्लड में आ गया और ब्लड क्या करता है? पूरे बॉडी के अंदर मूव कर रहा है। इस तरह से ये अपने केमिकल सब्सटेंस को पूरे बॉडी के अंदर फैलाने का काम करते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी, near about more than 20 glands are reported that are categorized into the endocrine, exocrine and mixed gland। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 से भी ज्यादा ग्लैंड रिपोर्ट किए गए हैं जिनको हम लोगों ने एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स की कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। वही हम लोग बात करें प्लांट की, तो प्लांट के रिस्पेक्ट हम लोगों को कोई भी ग्लैंड देखने को नहीं मिलता है। इन द सेम वे the human body consists of the nerve response and chemical response. Due to this they show the fast response। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वहां पे केमिकल का रिस्पांस भी आ रहा है और नर्व का रिस्पांस भी आ रहा है, इसको सब लोग फास्ट मूवमेंट शो कर पाते हैं। जबकि प्लांट के अंदर जो ग्लैंड हो रहे हैं कोई स्पेसिफिक ग्लैंड होगी ही नहीं, वहां पे हार्मोन्स तो बनता है लेकिन केवल 5 टाइप के हार्मोन्स सपोर्ट किए गए हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एसिटिक एसिड, थाइलिन। तो ये 5 हार्मोन्स ही प्लांट के अंदर मूवमेंट ट्रैक में हेल्प करते हैं। लेकिन ये केमिकल है और केमिकल में से क्या होता है? मूवमेंट काफी स्लो आ रहा होता है, जबकि जो नर्व होती है नर्व के थ्रू रिस्पांस काफी फास्ट आता है। तो यहाँ हम बात करें प्लांट के रिस्पेक्ट में, तो प्लांट के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो केमिकल आएगा वो केमिकल कहाँ से आएगा? वो इस ग्लैंड से ही आ रहा होगा। तो ऐसे से पहले बात किया गया एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में। तब बात करते हैं कि एक्सोक्राइन की कैटेगरी में कौन कौन सी ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर आती है। तो एंडोक्राइन के बेस पे जो फर्स्ट ग्लैंड रिपोर्ट की गई वो क्या है? हमारी पीनियल ग्लैंड है। दिस पीनियल ग्लैंड आर लोकेटेड इन आवर ब्रेन रीजन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। तो जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे ये पीनियल ग्लैंड रिपोर्ट की गई है। इसकी साइज रिपोर्ट की गई है केवल 10 मिलीमीटर का ही होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सभी ग्लैंड में से सबसे छोटी ग्लैंड जो है वो क्या है? पीनियल ग्लैंड है। सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं पी ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये मटर के साइज की होती है, जैसे पी होती है सेम उसके साइज का होगा ये। दिस इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट जितनी भी ग्लैंड है उन सब के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। जैसे कि मास्टर मतलब एक टीचर मान लिया, टीचर क्लास के अंदर खड़ा है, तब जो टीचर बोलेगा बच्चे वही करेंगे, तो सेम फंक्शन ये भी करेगा। जो फंक्शन ये अदर ग्लैंड करने को बोलेगा वही फंक्शन दूसरी ग्लैंड करेगी। यानी कि पूरे बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड है उन सब की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है पी ग्लैंड। लेकिन ग्लैंड अपने फंक्शन को खुद से रेगुलेट नहीं कर पाता है, उसको फंक्शन कराने के लिए ब्रेन की नीड होगी। अब ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक रीजन होता है हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस यहाँ दिखाया गया है, ये सिग्नल सेंड करता है पिट्यूटरी को, तब पिट्यूटरी कहीं जाके वर्क करती है। यानी कि ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो नर्व के ही अंदर आ रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्लैंड की, तो ग्लैंड के बेस पे मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इसके बाद थायराइड और पैराथायराइड, ये होती है हमारे नेक रीजन पे। तो थायराइड और पैराथायराइड दो तरह की ग्लैंड रिपोर्ट की गई है, जहां पे थायराइड होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की अपीयर होती है। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के अंदर चेक करेंगे तो ये हम लोग को रेडिश ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। होता है पिट्यूटरी देखने को दिखाई पड़ेगा येलो कलर का, ये हल्की सी स्लाइटिश येलो होती है। तो थायराइड ग्लैंड के साइज की बात की जाए तो साइज के बेस पे ये नियर अबाउट 4 × 5 सेंटीमीटर के होते हैं। मतलब किसका जो लेंथ होगा 5 हो जाएगा और डायमीटर का हो जाएगी इसकी 6 हो जाएगी। इसके बाद जो इसका वेट होता है, इसका वेट रिपोर्ट किया गया है नियर अबाउट 25 ग्राम का। तो जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड रिपोर्ट की गई है नियर अबाउट 25 ग्राम की और इसका साइज होता है 4 × 5 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर
पैराथायराइड ग्लैंड लगी रहती है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है? पैराथायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा होगा। ये दिखाई पड़ता है येलो कलर का। इसकी साइज होती है 5x5 मिलीमीटर। तो 5x5 यानी कि 25 मिलीमीटर साइज का होगा। ये 25 मिलीमीटर साइज का इसको रिपोर्ट किया गया है। सेकेंड बात करें इसकी बात तो थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड आर द ग्लैंड दैट आर रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड द साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ T lymphocyte cells। अब T lymphocyte सेल क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट्स पाया जाता है। अब WBC के अंदर कई तरह की सेल होती है, मैक्रोफेजेस, मॉइस्ट सेल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड T सेल और B सेल। तो जो फाइटर सेल होती है वो T सेल और B सेल कही जाती है, क्योंकि जो T सेल और B सेल होगी वो मोस्ट ऑफ द कंडीशन में हमारे सिस्टम के एक्टिवेशन के लिए रिस्पांसिबल होती है। तो यहाँ पे जो T सेल होती है, T सेल को मैच्योरेशन के लिए थाइमस की नीड होती है। तो थाइमस जो होगा वो थाइमस हमारे हार्ट के पास होता है, हार्ट के ऊपर रहता है, और ये थाइमस ग्लैंड होता है वहाँ पे T सेल का मैच्योरेशन हो रहा होगा। अगर हम बात करें इसके साइज की, तो साइज के बेस पे इनका साइज रिपोर्ट किया गया है 3x4 सेंटीमीटर का, जबकि दिखने में होती है पिंक कलर की, और इनका वेट जो होता है नियर अबाउट 5 ग्राम का होता है। तो थाइमस ग्लैंड का जो वेट होगा 5 ग्राम का होगा, ये पिंक कलर की होगी और 3 to 5 सेंटीमीटर की होती है। नाउ नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट अबव द किडनी एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड है, जो कि किडनी के ठीक ऊपर होती है। अब लोग बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब कि ऐसी ग्लैंड जहाँ पे डक्ट पाया जाता है, और डक्ट के प्रेजेंट होने की वजह से ये अपने केमिकल सब्सटेंस को डायरेक्टली सीक्रेट करने की कैपेसिटी रखती है। अब यहाँ पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें फेस की, तो फेस पे हम लोग को कई ग्लैंड मिल जाएगी। सबसे पहले ऑयल ग्लैंड, जो कि ऑयल सीक्रेट कर रही होती है। स्वेट ग्लैंड, तो हमारे फेस से स्वेट भी आ रहा होता है और ऑयल भी आ रहा होता है। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में जो स्वेट ग्लैंड होती है हमारे पूरे बॉडी के अंदर लगी होगी, नेक रीजन से लेकर लेग तक और टोए तक हमारे पास ये स्वेट ग्लैंड लगी होती है। तो जो स्वेट ग्लैंड होती है पूरे बॉडी के अंदर फैली रहती है, जबकि जो ऑयल ग्लैंड होती है वो केवल फेस के अंदर रिपोर्ट की गई है। मैमरी ग्लैंड इसमें द मिल्क ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ये केवल मैमल पास होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होती है टेस्टिकल में, जो कि मिल्क प्रोडक्शन में काम कर रही होती है। अब ये मिल्क क्या होते हैं, ये मिल्क हेल्पफुल होते हैं नरिशमेंट ऑफ चाइल्ड। जो ह्यूमन का चाइल्ड आता है वो उससे नरिशमेंट लेता है, फूड लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आई की, तो आई के अंदर होता है लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं टीयर ग्लैंड, क्योंकि आई के थ्रू लगातार, क्योंकि आई लेक्राइमल ग्लैंड रखती है जो कि टीयर का सिक्रीशन कर रही होगी। जैसे हमारे आई के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल जाते हैं या कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे टीयर ग्लैंड और लेक्राइमल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें नोज की, तो नोज के अंदर म्यूकस ग्लैंड होता है एंड दिस म्यूकस ग्लैंड आल्सो रिपोर्टेड इन आवर स्टमक। तो नोज के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड है वो तो अपना सिक्रीशन बाहर निकाल रहा है, जैसे हम नाक छींकते हैं अपनी जो स्नीजिंग करते हैं, तो इसकी वजह से वो केमिकल सब्सटेंस को बाहर निकाल रही है। लेकिन बात करें स्टमक की, तो स्टमक के अंदर जो ग्लैंडुलर पार्ट आ रहा है वो तो बॉडी के अंदर है, लेकिन एक्सोक्राइन का मतलब ये होता है कि ऐसी ग्लैंड जो कि अपना केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट कर रही है बॉडी सरफेस के बाहर। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं कि बॉडी के बाहर निकाल ली, बॉडी सरफेस के बाहर सीक्रेशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। जैसे हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक के केस में जो हमारे पास म्यूकस ग्लैंड, ये म्यूकस ग्लैंड अपना केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट कर रही होगी बॉडी सरफेस के बाहर, बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी सरफेस के बाहर। जैसा लिखा गया है सीक्रेट द केमिकल सब्सटेंस आउटसाइड द बॉडी सरफेस, न कि आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे सरफेस लिखा गया है, बॉडी नहीं लिखा गया है, ठीक। यानी कि ऐसा केमिकल, ऐसा ग्लैंड जो कि अपना केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करता है बॉडी सरफेस के बाहर, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है। वही हम बात करें ईयर की, तो ईयर के अंदर रिपोर्ट की गई है वैक्स ग्लैंड। दिस वैक्स ग्लैंड इज नोन एज द सेबेसियस ग्लैंड। तो सेबेसियस ग्लैंड या वैक्स ग्लैंड होती है हमारे पास ईयर के अंदर। एंड सलाइवरी ग्लैंड रिपोर्टेड इन आवर माउथ, जो सलाइवा निकालते हैं माउथ से, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर इट इज 3 टाइप्स, पैरेटेड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। तो पैरेटेड ग्लैंड अपर साइड पे होगी, सबलिंगुअल लोअर साइड पे होगी, सबमैंडिबुलर भी लोअर साइड पे होगी। तो पैरेटेड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर टाइप की टोटल 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर रिपोर्ट की गई, जिसका काम होता है सलाइवा का सिक्रीशन करना।
तो इस तरह से ये जितने भी ग्लैंड हैं, ये सारी की सारी ग्लैंड अपना केमिकल सब्सटेंस बॉडी सरफेस के बाहर निकाल रही हैं। अब बात करते हैं हम लोग मिल्क ग्लैंड की। तो मिल्क ग्लैंड के अंदर ऐसी ग्लैंड आएगी जिनके अंदर जो केमिकल बन रहा है वो बॉडी सरफेस के बाहर भी जाएगा और बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर डिसॉल्व होकर बॉडी के अदर पार्ट की एक्टिविटी को भी रेगुलेट कर रहा होगा। तो उसके बेस पे पहले बात करते हैं हम लोग लीवर का। तो लीवर जो होता है इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर है। दिस लीवर आल्सो नोन एज द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स एंजाइम का सिंथेसिस हो रहा होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे जितने भी हार्मोन्स एंजाइम आ रहे हैं वो सबके साथ एंडोक्राइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बनता है बाइल जूस। तो बाइल जूस यानी कि बाइल पिगमेंट जो बन रहा है, ये बाइल पिगमेंट, ये बाइल जूस हेल्पफुल होता है डाइजेशन प्रोसेस के टाइम पे। जब यहाँ पे हम लोग फूड अपटेक करते हैं उसके बाद वो स्टमक पहुंचता है, स्टमक में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन के अंदर उस फूड को फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस की नीड होती है, क्योंकि बाइल जूस करता क्या है, यहाँ पे फूड सब्सटेंस की पीएच को चेंज कर देता है और उसको बेसिक बना देता है। तो जो भी बेसिक सब्सटेंस अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे माउथ लेके स्टमक तक, वो फर्दर इंटेस्टाइन के अंदर आके डाइजेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे पीएच तो चेंज हो गया, लेकिन डाइजेशन करने के लिए अब एंजाइम की नीड होगी। ये एंजाइम कहाँ से आ रहा होता है, ये एंजाइम आता है पैंक्रियाज से। यानी कि पैंक्रियाज के थ्रू जो भी एंजाइम डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या शो करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सोकाइन की तरफ फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे बाइल जूस आया, ये बाइल जूस कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ओपन सर्फेस। जैसे यहाँ पे स्टमक के अंदर आ रहा था, तो स्टमक के अंदर क्या था, म्यूकस ग्लैंड थी। सेम कंडीशन में बाइल जूस भी क्या होगा, जैसे कि एक सर्फेस से करेगा स्टमक में। अब जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारा स्टमक जो है, ये स्टमक शो कर रहा था म्यूकस ग्लैंड के सिक्रीशन। अब जब फूड सब्सटेंस आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद लीवर यहाँ लगा होगा। ये लीवर करता क्या है, बाइल सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा होता है जो कि आगे ओपन होता है पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। तो यहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू अब जो भी सब्सटेंस होगा इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आएगा, जिसको बोलते हैं डुोडेनम। तो डुोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसके अंदर यहाँ पे इस लीवर ने क्या किया, पीएच चेंज कर दिया 8.5। अब इसके बाद फर्दर डाइजेशन के लिए पैंक्रियाज आएगा। तो ये जो भी सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं, ये सब्सटेंस कहाँ पे आ रहा है, ये सब्सटेंस आ रहा है बॉडी सरफेस के बाहर, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोक्राइन फंक्शन। अब एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है इसका, एंडोक्राइन फंक्शन की अगर बात करें पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज से दो स्पेसिफिक एंजाइम निकलते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन का क्या होता है, इंसुलिन आर रिस्पांसिबल to decrease the amount of glucose in our blood। जैसे हमने खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट होगा। अब डाइजेस्ट होने के बाद वो सब्सटेंस ग्लूकोज फॉर्म में ब्रेक होगा और ग्लूकोज फॉर्म में ब्रेक होने के बाद वो सब्सटेंस इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर आएगा। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट अगर बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। उस कंडीशन में उस एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को बदल देता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। वही अगर बात करें हम लोग ग्लूकेगॉन की, तो ग्लूकेगॉन क्या करता है, ये ग्लूकेगॉन, अगर हम बात करें ग्लूकेगॉन, तो ये ग्लूकेगॉन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को चेंज करता है फिर से ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ये ग्लाइकोजन और ग्लूकोज क्या चीज है, हमारे बॉडी के अंदर जो फूड सब्सटेंस स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। ये ग्लाइकोजन हमारे बॉडी का स्टोरेज फूड सब्सटेंस है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन ब्लड के थ्रू ग्लूकोज को ले रहा है और लेने के बाद बॉडी के ऑर्गन में ट्रांसफर कर दे रहा है। अब बॉडी ऑर्गन इनका यूज कर रही है, एक्सेस ग्लूकोज जो होगा उसको फर्दर ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो रही है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी। इस कंडीशन में अगर हम लोग को प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो वहां पे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए अब ग्लूकेगॉन आएगा। ग्लूकेगॉन क्या करेगा, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स ब्लड के थ्रू होकर डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाएगा, जहां पे वो स्टोर ग्लाइकोजन कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के फॉर्म में।
और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अब फिर से ब्लड के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन दोनों ही हमारे बॉडी के लिए फंक्शन कर रहे होते हैं और ये दोनों हार्मोन्स ही ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा होगा। यानी कि ये शो कर रहा है एंडोक्राइन की तरफ फंक्शन, जबकि यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे वो शो करते हैं एक्सोक्राइन की तरफ फंक्शन। यानी ये क्या हो गया हमारा मिसलाइन हो गया। अब हम बात करें ओवरी की। ओवरी आर इज द गोनाडल पार्ट्स ऑफ फीमेल बॉडी दैट सीक्रेट द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी जो होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कर रही होती है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पांसिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए फीमेल बॉडी के अंदर। जैसे ही कोई फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आती है, मतलब कि जब वो मैच्योर हो जाएगी, उस कंडीशन में वहां पे जो पिच वाइज दिखती है, ब्रिस्ट फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो भी फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही आ रहे होते हैं। और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिस्पांसिबल होते हैं थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग हेल्पफुल होती है उसके जब चाइल्ड उसके बॉडी के अंदर बढ़ रहा होगा तो वहां पे उस चाइल्ड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया था इसका एंडोक्राइन। वही अगर बात करें एक्सोक्राइन फंक्शन की, तो एक्सोक्राइन फंक्शन पे बेस पे सिक्रीशन ऑफ ओवम आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर ओवम फॉर्म हो रहा होगा, मतलब एक फॉर्म हो रहा होगा। अगर उसने फर्टिलाइजेशन कर लिया तब तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो उससे चाइल्ड बन जाएगा। अगर मान ली फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस कंडीशन में ये एक सेल ओवरी से निकल के आ जाएगी यूटेरस के अंदर और बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो सिक्रीशन ऑफ ओवम यानी कि सिक्रीशन ऑफ एग सेल रिप्रेजेंट करता है एक्सोक्राइन फंक्शन, व्हाइल द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिप्रेजेंट करता है एंडोक्राइन फंक्शन। अब हम बात करें टेस्टिस की। टेस्टिस प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल बॉडी। तो मेल बॉडी के अंदर जो गोनाड होता है उसको बोलते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर दो तरह के सिक्रीशन होंगे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन। दिस टेस्टोस्टेरोन रिप्रेजेंट द एंडोक्राइन सिक्रीशन बिकॉज इन केस ऑफ मेल बॉडी दिस टेस्टोस्टेरोन आर रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ मेल। तो जब कोई मेल प्यूबर्टी कंडीशन में जाएगा वहां पे हम लोग देखने मिलता है बियर्ड मूछा मतलब दाढ़ी मूछ आने लगती है। इसके अलावा वहां पे स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और डिपनेस ऑफ वॉइस मतलब आवाज की भारी हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन मेल की है। इसके अलावा स्ट्रॉन्गनेस ऑफ मसल्स, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक मेल के हैं जो कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वही हम लोग बात करें एक्सोक्राइन फंक्शन की, तो एक्सोक्राइन फंक्शन के बेस पे सिक्रीशन ऑफ स्पर्म आ जाएगा और सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पॉकस ग्लैंड का सिक्रीशन, स्पर्म सेल, डिपनेस ऑफ वॉइस एंड स्ट्रॉन्गनेस ऑफ मसल्स। तो ये टेस्टोस्टेरोन पूरे बॉडी के अंदर घूम रहा होगा और डिफरेंट एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। इसी तरह से हम बात करें फीमेल बॉडी की, तो फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, और वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा जो कि ब्रेस्ट फॉर्मेशन हेल्प करेगा, उनकी वॉइस को हाई पिच कर देगा, सॉफ्टनेस ऑफ मसल्स कर देगा, वाइडनिंग ऑफ हिप बोन कर देगा। इसके अलावा ब्रेस्ट फॉर्मेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो ये हो गया एंडोक्राइन फंक्शन, जबकि ओवरी का यानी कि एक सेल का सिक्रीशन क्या हो जाएगा वो एक्सोक्राइन की तरफ वर्क करेगा। सेम पैंक्रियास, पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एंडोक्राइन फंक्शन, जबकि डाइजेस्टिव एंजाइम जो आ रहे हैं इससे वो रिप्रेजेंट करेंगे एक्सोक्राइन फंक्शन। लीवर के अंदर जो बाइल जूस आ रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सोक्राइन फंक्शन, जबकि लीवर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स एंजाइम बन रहे हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट कर रहे हैं ये हो जाएंगे एंडोक्राइन फंक्शन। ये हो जाएंगे एंडोक्राइन फंक्शन। I hope you understand each and every topic that I explained here.